Hello and namaskar to each and every one of you. I Ashutosh Bansal welcome you all to the Physics Wala. So today's lecture is on your NABARD Grade A examination. We will know about the why, how and various questions regarding the NABARD Grade A examination. Okay. So what we are going to discuss today is your role of a NABARD Grade A officer. First is the role of NABARD Grade A officer. Second is the various perks and the benefit attached with the NABARD Grade A officer post. Okay, it recruited for your assistant manager post. Second and third will be your the exam pattern. What is the exam pattern and how we are going to help you and how we are going to aid you in preparing for this particular examination. Okay, so let's start our today's session. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर अबाउट द एग्जाम. तो एग्जाम में क्या है, पोस्ट क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ पोस्ट इज योर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट. You will be recruited at the entry level of your assistant manager, which is a grade A post under the NABARD. NABARD is क्या है आपका? NABARD is your Apex Rural Banking Institution in India. Okay, and NABARD का full form क्या है आपके पास? National Bank for Agriculture and your Rural Development. National Bank for your Agriculture and Rural Development. इसका मतलब क्या हुआ? A bank which is dedicated for your agriculture growth and bringing rural prosperity. Okay, so organization क्या है आपकी? NABARD. And NABARD is your wholly owned body by the government of India. NABARD is your first is it is an statutory body. Statutory body established under NABARD Act of 1981. It was established in 1982. Okay, क्रिएट कब हुई थी आपकी? 1982 में, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमिटी. शिवारमन कमिटी की रिकमेंडेशन पे आपने NABARD की स्टैब्लिशमेंट किया था. नाउ द सैलरी इज सैलरी द बेसिक पे मीन्स बेसिक पे जो है आपकी वो है आपकी 44,500 पर मंथ. ओके, बेसिक पे इज योर 44,500 per month, which will get up to 1 lakh to 1,25,000 depending on various allowances and the city in which you are posted. तो सैलरी ब्रैकेट जो है आपका वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द वेरियस काइंड ऑफ अलाउंसेस and also on the various cities in which you are posted. So it is a very good job, a government job with a very good benefit also. Okay, so age limit is your 21 से 30 year तक individuals can fill a form for your NABARD grade A examination. There will be age relaxation to your various categories like your OBC, SC and STs. Okay, so this is a basic information about the examination. एग्जामिनेशन क्या है आपका? असिस्टेंट मैनेजर. इट्स अ ग्रेड ए पोस्ट अंडर द RDBS सर्विसेज. ओके, सेकेंड इट इज अबाउट NABARD is your apex financial institution for rural development in India. Okay, and it was NABARD कब established हुआ था हमारा? 1982 में अंडर द 1981 एक्ट ऑफ NABARD. इट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी आपकी? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इज योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ योर NABARD. ओके, तो ये हो गया आपका NABARD के बारे में. नाउ वाई हम NABARD में ही क्यों जाए? ओके, वाई वी शुड चूज NABARD. सो गांधी जी फेमसली कोटेड द सोल ऑफ इंडिया, इंडिया की आत्मा, द सोल ऑफ इंडिया रिसाइड इन द विलेजेस. मतलब इंडिया की आत्मा उसके विलेजेस, उसके कस्बों में बसती है. ऑल्सो यू नो सोल
of India resides in its villages. Also, you know that more than 60% of Indian population live in your rural areas. So आपके पास a particular institute है जो particular impact लेके आना चाह रहा है on your majority of the population, which ultimately needs your support. That's why we see the various government programs like Sarvodaya, Antodaya. So all these words are aligning toward the people at the bottom of pyramid. People at the lowest rung or the bottom of pyramid. NABARD is focusing on the upliftment of people at the bottom of the pyramid. इसलिए आपके लिए NABARD की job important है. You can bring a direct impact. You can bring direct impact in the life of majority of people. Direct positive impact. Also, there are various benefit attached to the NABARD. जैसे कि it brings proud to your parents, proud to your country, proud to yourself. Why? It is in government job. ठीक है, there is a job security of tenure है यहाँ पर. There is a very little interference. Any kind of interference बहुत कम होता है यहाँ पर. Also, you are directly working on the upliftment of the people जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, people who needs your help, who needs the government support in their prosperity, in their growth, in their development. So NABARD is directly impacting those people. Okay. Then there is a job security which comes with every government job. Job security is there. Okay. Then a provision where NABARD directly finance. Okay. NABARD क्या आपके फाइनेंस करता है, NABARD एडवाइस करता है, NABARD सुपरवाइज कर रहा है. सो प्रोवाइडिंग क्रेडिट प्लस एडवाइसिंग द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी प्लस सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन. सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन. कितने काम होगा यहाँ पर? क्रेडिट देने का, फाइनेंसिंग का, एडवाइस करने का, सजेशंस देने का to the government about the policies. Okay, and then the supervising whether the implementation of the particular schemes, particular initiative has been done as expected on a perfect manner. ये क्या है आपका NABARD का आपके पास रोल है. Why you should striving for this exam, ये आपके पास reasons देता है. Okay, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है आपको इंपॉर्टेंटली क्या देता है? आपको डायरेक्ट इंपैक्ट लेके आने का ये मौका देता है. देन देयर आर वेरियस बेनिफिट अटैच विद द गवर्नमेंट सर्विस, वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है. ओके, सो NABARD ग्रेड ए आपके लिए प्रेस्टिजियस जॉब है. NABARD एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन you can be a part of that nation building exercise. So first importance is the nation building role में आपका एक participation रहेगा and active participation. You directly contribute to the agriculture and rural development which require government focus because we are a welfare state and it's our responsibility to bring prosperity, to bring development at the bottom of your pyramid, the people residing at the bottom of your pyramid, supporting the more than 50% of your population, rural areas. Officers are at the heart of the policy implementation. So जो officers मतलब जो आप बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर्स जो होते हैं
वो रहते हैं कहां पर, हार्ट में. दे आर एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. दे आर द वंस हु आर अलाइनिंग द objective of the policy with the implementation of the policy. So they are the connecting link. जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसका ये कनेक्टिंग लिंक बनेगा कौन, आपका असिस्टेंट मैनेजर, अ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर इन key areas like your rural credit, infrastructure and financial inclusion. Okay, premier institution NABARD में वर्क करना is itself a moment of proud for particular person, for particular family also, because NABARD is an apex, it as a top of your rural financial institution system. Okay, also it is an statutory body under the administration of Ministry of Finance. Working here offers high credibility. credibility देगा आपको, बहुत ज्यादा credible होता है ये organization because it is creating a direct impact on the lives of so millions of people in India. Respect and the financial sector. Strategic and the advisory position. Advisory position है ये वाली. In a sense कि roles जब होते हैं वो different आपको मिलते हैं. Sometimes you get a credit role कि आप credit आप पास करेंगे with the पॉलिसी को आप देखते हुए या फिर आपके पास फंड को देखते हुए आप क्रेडिट पास करेंगे. सेकंड इज और एडवाइस करना है, किसको, गवर्नमेंट को एडवाइस करना है कि आप पर्टिकुलर स्कीम्स लेके आइए और देयर शुड बी सम चेंजेस टू बी मेड इन अ पर्टिकुलर स्कीम्स. ओके, सो ये कौन करेगा आपके पास, NABARD ऑफिसर्स विल प्रोवाइड द सच इंफॉर्मेशंस. They advise banks and the rural institution playing a crucial role in shaping your grassroots economy. Again, where are those people जहां पर आप impact करेंगे, at the bottom means at the grassroots level. You will bring a bottom up development in this country. A country with more than 60% population residing in your rural India's need an institution which is working for the grassroots people, and the NABARD is this one institution. Okay, excellent work life balance, 5 days work job is this. Also there are many provisions for the leave की provisions है आपके पास. You can spend your time with family, you can spend your time with your loved ones. Also you have a good job at hand. Okay, so it is providing you perfect work life balance also. Then a salary, attractive salary. In the initial salary means आपकी starting salary is more than or hover around your 1 lakh per month, which is a very good salary. Okay, being in your government sector. Secure and respective government job, since it is a statutory body, comes directly under the Ministry of Finance, so it is a government job and a respected one too. Now there are the positions, various positions present in the NABARD. So you start here as an assistant manager with a grade A job. After 3 to 4 years you get promoted. There is a promotion cycle, a inbuilt promotion cycle in the NABARD organization, where a people who has a chance to get inside the organization at an assistant manager level can go up to the chairperson of the NABARD. Okay, which is appointed by the government of India. So assistant manager to manager, then assistant general manager, deputy general manager, chief general manager, deputy managing director and the chairperson. So this is a hierarchy of the NABARD. Also there is a post called district development manager, DDM को बोलते हैं इसको. So they are posted in a district at state level. DDM की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती है, इन अ सेंस that he is the one who is the connecting dot between an HQ which is at headquarter at Mumbai to the people at your grassroots. Between them a link or a bridge is needed, which is the function performed by your DDM. Okay, so district development manager, it is a post under the NABARD. ये आपको मिलती है after
you spent your 4 to 5 year in the manager post. Okay, DDM जो होता है आपका, DM के साथ मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ क्या करता है, पॉलिसी डिसाइड करता है, फंड डिसाइड करता है जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपको डेवलपमेंट, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लगते हैं. ओके, सो DDM का क्या रोल आता है आपके पास? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू नो द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो उसका एक बहुत मेजर पार्ट जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा, स्पेशली इन इंडियन कंट्री और इंडियन सिनेरियो. मेजर पार्ट स्पेशली फॉर द क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू कहां से आएगा आपका? नाबार्ड का DDM के थ्रू आएगा. सो दे बोथ वर्क इन अ कोलैबोरेशन. मंथली मीटिंग होती है DDM की विद योर DM. ओके, सो दैट्स अ रोल और द इम्पैक्ट a DDM can create in a district. And they are also posting जो होती है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स की, they are also happen in the either in your tier 1 cities और in your tier 2 cities, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही जाते हैं नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स, ना कि आपके रूरल एरियाज में जाके काम करते हैं. तो इफ देयर इज अ मिथ ऑफ द थिंग कि नाबार्ड के ऑफिसर जो रहेंगे वो विलेजेस में जाके काम करेंगे, सो इट्स अ मिथ. ओके, नाउ द सिलेक्शन प्रोसीजर क्या आपका पास? एग्जाम पैटर्न. वी आर कमिंग ऑन टू द एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न इज सिमिलर टू द UPSC examination. If you are preparing for the UPSC examination, you know that there are 3 stages, but there is a 4th stage introduced in your 2023 year, which is known as your psychometric test. So पहला stage रहेगा just like your UPSC, it's a phase 1 which is your clearing examination. इसका आपके merit पे कोई असर नहीं होता है. Second is your mains or your phase 2 examination, which is whose number will be calculated in your final merit. Then the psychometric examination to check the cognitive ability, to check the behavioral abilities of the particular person. And then the interview, which is of the 50 marks. Based on the marks of the mains examination stage 2 and your stage 4, your ranking or your merit is decided, just like the UPSC section. Okay, now बहुत इंटरेस्टिंग है नाबार्ड एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन बट आर स्कैर्ड ऑफ समटाइम्स ऑफ द मैथ्स पार्ट, जिन्हें डर लगता है, सो दे डू नॉट परफॉर्म वेल इन सच एज अदर एग्जामिनेशन लाइक योर SSC हो गया या फिर MBA हो गया. ओके, नाउ नाबार्ड में क्या होता है आपके पास? देयर इज अ पेपर विथ 8 सब्जेक्ट है आपके पास. टेस्ट ऑफ रीजनिंग के साथ reasoning is there, English language is there, computer knowledge is there, quant aptitude, decision making. So all these 5 are considered as your non-merit sections. Non-merit का मतलब क्या हुआ आपके पास? नाबार्ड 5 section will be your reasoning, second will be your computer knowledge, third would be your English, fourth would be your quantitative aptitude, fifth would be your decision making. And UPSC में आपने देखा होगा there is a paper 1 which is of GS and the paper 2 which is your CSAT. तो जस्ट लाइक UPSC, यहां पर भी क्या आपके पास नाबार्ड की सेक्शंस हैं, दे आर नॉन मेरिट सेक्शन और दे आर मियर क्वालिफाइंग सेक्शन, क्वालिफाइंग इन नेचर, जस्ट लाइक योर CSAT. ओके, तो CSAT की तरह क्या आपके पास नाबार्ड में भी आपको मिलता है रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, इंग्लिश एंड डिसीजन मेकिंग सेक्शन एज योर क्वालिफाइंग सेक्शंस. मतलब आपको इसमें इफ सपोज आपकी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, इफ सपोज आपकी कंप्यूटर नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इट इज़ अ परफेक्ट एग्जामिनेशन फॉर यू इन द सेंस कि आपका GS वाला पार्ट स्ट्रांग रहे. GS वाले पार्ट में जब आते हैं तो मेरिट सेक्शन में क्या आता है आपके पास? मेरिट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स और योर जनरल अवेयरनेस इसे बोलते हैं. Second is your ESI, economic and social issues, and third is your ARD.
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आप पूरे सिलेबस को देखिए तो यू विल फाइंड दैट अराउंड देयर इज एन 60% ओवरलैप। कितना परसेंटेज ओवरलैप है बिटवीन द यूपीएससी एंड योर NABARD is around 60%, and out of those 60%, this section which is your non-merit section is already been covered in your CSET section. तो आप एक तीर से यहाँ पर दो शिकार कर सकते हैं, ओके। एंड देन यू हैव करंट अफेयर्स। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आएगी वो आपकी क्या आएगी, काफी लीनियंट और इजी आती है, डायरेक्ट आती है, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। ईएसआई में जो आप जीएस में पढ़ेंगे अपने स्कीम्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, देयर सोशल फैक्टर लाइक वेरियस स्कीम्स आ गया, या फिर सेंसस आ गया, आपका इम्पैक्ट ऑफ वेरियस स्कीम आ गया, वो आता है आपका ईएसआई में। नाउ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस इज अ पोर्शन विच इज अ मेक और ब्रेक सेक्शन। नाउ व्हाई आई कंसीडर एआरडी एज अ मेक और ब्रेक सेक्शन, बिकॉज NABARD में देखोगे आप तो you will find that this is an national bank for agriculture and rural development. So NABARD में ही already focus किया आपका agriculture and rural development, which also make it different from your GS part. अब GS part में भी there are various section in NABARD which overlap with your GS section which you have already read, just like a scheme like your मनरेगा scheme, okay? So मनरेगा has been asked in your ARD section also, and मनरेगा के बारे में आप GS section में already पढ़ते हैं, okay? So ये क्या होगा आपके पास, again overlap है, but with the minimum effort, with just minimum effort and smart strategy, you can obtain maximum output. Now how is it? This will be gauged or this will be identified by looking at the cutoffs, okay? अब हम कट ऑफ देखने वाले हैं। सो यू विल सी द कट ऑफ। कट ऑफ कितनी गई है यहाँ पर, रीजनिंग की गई है आपकी 3 मार्क्स। हाउ मच, जस्ट 3 मार्क्स आउट ऑफ योर 20 क्वेश्चंस। इंग्लिश कट ऑफ इज 10.25 आउट ऑफ योर 30 मार्क्स। देन द कंप्यूटर नॉलेज कट ऑफ इज योर 2.75 मार्क्स आउट ऑफ योर 20 क्वेश्चंस। Quantitative aptitude again just 3 marks out of your 20 questions. Then decision making, a very easy part, particularly in the examination, 1.5 marks. ये कट ऑफ थी आपकी 2023 में फेज 1 में, 24 के कट ऑफ आई नहीं है। सो दिस इज योर कट ऑफ मार्क्स फॉर द पर्टिकुलर सेक्शंस। सेक्शन वाइज कट ऑफ आता है एंड एक उसकी होलिस्टिक कट ऑफ आती है, ओके। So if you have cleared this marks, 3 मार्क्स आ गए आपके, 10.25 मार्क्स अगर इंग्लिश में आ गए, 2.7 मार्क्स आपके कंप्यूटर में आ गए, 3 मार्क्स अगेन क्वांट में आते हैं, 1.5 मार्क्स अगर आपके डिसीजन मेकिंग में आते हैं। सो यू आर क्लियर फ्रॉम योर नॉन मेरिट सेक्शन। जब भी बोल रहा हूं मैं आपको कि आपके पास ये एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली उन पर्संस के लिए हु आर कंपैरेटिवली वीक इन योर क्वांट एंड रीजनिंग। आपको समझना चाहिए दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो कॉम्पिटिशन आपका पर्सन के संग है, अदर पर्सन के संग है, ओके। नाउ व्हाई आई वाज सेइंग कि आपके पास एज है इस पर्टिकुलर एग्जाम में बाय स्पेसिफिकली लुकिंग एट योर मेरिट सेक्शन कट ऑफ, ओके। सो वी नो दैट देयर इज अ 60% ओवरलैप इन द सिलेबस बिटवीन द मेरिट सेक्शन, नॉन मेरिट सेक्शन विद द यूपीएससी, and the cutoff for your prelims is just 46 marks for the general category. अगर 46 marks cutoff है and there is a general overlap of syllabus of 60%, then the effort जो आपका जाएगा for clearing this particular examination, prelims examination will be similar
सिमिलर इन द सेंस कि आपको एफर्ट इसमें ज्यादा डालना नहीं पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इन योर अप्रोच. क्या होना पड़ेगा आपको? स्मार्ट इन योर अप्रोच बाय टेकलिंग द challenges posed by these both examination and how you channelize your effort in preparing for the UPSC examination as well as your NABARD examination. Okay, so general awareness में there is a 20 questions. Bilingual means अब ये जो आपका section है, this section will be your merit section. This will decide your merit, whether you have cleared your prelims or not. So there are 20 question of general awareness. Direct question आते हैं last six month की current affairs के basis पर. Then the ESI section, economic and social issue section, with a focus on rural development. Again काफी easy रहता है comparatively और आपको इसमें ज़्यादा effort भी नहीं डालने पड़ते हैं. Agriculture and rural development with again emphasize on rural India, because आपका फोकस कहाँ है आपका नाबार्ड का? रूरल प्रॉस्पेरिटी में. तो फोकस आपका एग्जाम का भी क्या रहेगा? रूरल इंडिया पर रहेगा. अगेन 40 मार्क्स का होता है ये, ठीक है. 40 कट ऑफ कितनी गई थी आपकी 23 में? 46 मार्क्स. सो अगर 20 में से इफ यू आर एबल टू गेट 10 to 15 clear, in the 40 in the ESI section you are able to get around 20 marks, and in the ARD section also you are able to get 20 marks. so around आपका हो जाता है 55 marks. मैं आपको 50% लाने के लिए पूछ रहा हूँ सिर्फ. ESI में 50 and ARD में 50% out of your 60% overlap. जो overlap है उसमें से भी आपके पास यहाँ पर chances हैं, okay, to just clear the examination with your minimum effort to get your maximum आउटपुट. ओके, मिनिमम एफर्ट से आपको मिलेगा मैक्सिमम आउटपुट. सो दिस एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली फॉर द ones who are preparing for the examination like UPSC is a very beneficial and it's a low hanging fruit. Okay, so this is a cutoff for your non merit section. This is a cutoff for your merit section. मेरिट सेक्शन में भी आपके पास क्या है? टोटल 46 मार्क्स हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि आपके पास जो मार्क्स आएंगे जनरल अवेयरनेस में सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी है विथ 2.75 मार्क्स, 3.5 मार्क्स एंड 4.25 मार्क्स इन योर ARD सेक्शन इन योर प्रीलिम्स स्टेज और योर phase 1 स्टेज. देन वी हैव phase 2 स्टेज. जस्ट लाइक योर UPSC क्या होता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन आता है एंड इंग्लिश पेपर. इसमें सिर्फ 2 ही आपके पास पेपर आते हैं, ठीक है, इंग्लिश एंड योर ESI एंड ARD. इंग्लिश, ESI एंड ARD. सो इंग्लिश comprises of your 100 marks. So we have a mains examination of 200, out of which 100 is your English and 100 is your ESI plus ARD. Now we all know that we prepare for your English examination in the CSET also and also in your mains examination. Similarly आपको यहाँ पर descriptive answer देना है, but condition is that you have to type it. आपको यहाँ पर आंसर टाइप करना पड़ता है कंप्यूटर पे. तो एक हैबिट डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं हम अपनी विथ बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन. टाइम कम रहता है इसलिए बोलते हैं कि आपको जैसी नोटिफिकेशन आए यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट गिविंग 1 hour फॉर द टाइपिंग, बिकॉज आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव है वो सिर्फ इंग्लिश के लिए टाइपिंग नहीं है, वो आपके पास टाइपिंग ESI एंड ARD के लिए भी आती है. ओके, नाउ ये क्या आपके पास कॉम्बिनेशन है. दिस इज अ कॉम्बो इन ESI एंड ARD सेक्शन वेयर 50 मार्क्स विल बी फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड 50 मार्क्स विल बी देयर फॉर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट. ठीक है, अगेन यू नीड टू इंश्योर कि आपकी टाइपिंग यहाँ पर अच्छी रहे. ओके, 50 आपके पास 100 मार्क्स है इंग्लिश के which will be secured by typing, and 50 marks from the ARD and ESI section from the paper 2 which will be secured by the typing. 50 marks is your objective questions. Okay,
सो बैलेंस बना के रखा है एग्जामिनेशन ने, और एक अच्छा बैलेंस बना के रखा है. देन देयर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपको इवॉल्व करता है, मतलब इवॉल्व या फिर आपको टेस्ट करता है ऑन बिहेवियरल पैटर्न, ऑन योर कॉग्निटिव एबिलिटी, डे टू डे एबिलिटी में, डे टू डे फंक्शन में आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके के आप डिसीजन को या फिर प्रोसेस फॉलो करते हैं डिसीजन के लिए, वो ये आपको टेस्ट करता है. ओके, सो इट इवैल्यूएट द साइकोलॉजिकल ट्रेट एंड पर्सनैलिटी एस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट, assessing their suitability for the role and their overall potential. क्या करता है, आपका रोल देखता है, आपका पोटेंशियल देखता है with the particular test for the organization. So it was introduced in 2023. Then we have the interview. Interview का मार्क्स कितना है आपके पास, 50. So 200 from your phase 2 examination plus 50. Psychometric is again your qualifying in nature. Okay, 50 from your interview. Total is a 250. Okay, 250 में से आपको लाने हैं around 175 plus to get a secure name in the merit list. So purpose after qualifying आपके पास इंटरव्यू होता है, just like again यूपीएससी की तरह यहाँ पर भी क्या आपके पास सेक्शन है, यहाँ पर इंटरव्यू होगा which will assess or they will ask some questions and you have to answer them. Okay, now the exam date or the exam cycle. The one thing which is very good about this particular examination is the examination cycle. So the notification came in your July or you can say अगस्त स्टार्टिंग, जुलाई का लास्ट में आया, बिल्कुल जुलाई से लेके आपके अगस्त सितंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक दे गिव यू मोर देन 30 डेज टाइम. 30 डेज टाइम के बाद दे प्रोवाइड यू 50 डेज टाइम एंड विद इन यू विल सी जुलाई से लेके अक्टूबर तक एग्जामिनेशन का मेजर पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ यू कैन अगेन शिफ्ट योर फोकस टू योर एग्जामिनेशन. कौन सा, यूपीएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी. तो एग्जामिनेशन में आप फंसे नहीं रहते हैं, साइकिल में आप उलझे नहीं रहते हैं, इट गिव्स यू क्लैरिटी, वो भी बहुत जल्दी. सिमिलरली आप देखेंगे हर साल ये एग्जामिनेशन आ रहा है, सो इट्स अ रेगुलर एग्जाम. क्या है ये एग्जाम, दिस इज योर रेगुलर एग्जाम, नॉट लाइक अदर एग्जाम जो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार आ रहे हैं, विच कीप्स यू टेम्पटिंग. सेकेंड इज स्मॉल एग्जाम साइकिल, सो यू कैन गेट आउट ऑफ द पर्टिकुलर साइकिल क्विकली. 4 से 5 महीने में यू विल रियलाइज और यू विल गेट टू नो that whether you are cut off for this particular examination or not. You do not have to again start for the whole year. Okay, so it saves time, it gives you a sense of direction कि आप कहां पर जा रहे हैं. Okay, 2020 से आप देखोगे 2020 and 2021 with the COVID year, बट साइकिल आप ये देखोगे 4 to 5 मंथ में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, नोटिफिकेशन से लेके मेंस तक की. देन देयर इज अ प्रोसेस जो आपका इंटरव्यू तो चलता है एंड विच टुक टाइम ऑफ 2 months और 2.5 months डिपेंडिंग ऑन द candidates and depending on the various number of posts released by this particular organization or for the assistant manager post. Okay, so you will see the competition now and the vacancy, various vacancies. So you know कि यूपीएससी में अराउंड 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 1000 पोस्ट के लिए, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.01. ओके, हियर पोस्ट कितनी है आपके पास, 150 पोस्ट है and the person who have appeared is 44,263 and there is an upward trend. You will see or realize the upward trend in the people attempting which the examination, particular examination. So again the competition is low compared to the other examination because of the fact that they do not realize the overlapping nature of this particular examination with the other examination. They do not realize the smart strategy with which a minimum effort के संग आप maximum output लेके आ सकते हैं.
Okay, now this is an analysis of your ARD section. Why I have now put the analysis of the ARD section particularly because ये section ही जो होता है वो सबसे ज्यादा लोगों को डराता है इन द सेंस कि चूज करने से पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नबार्ड को हम चूज क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ द ARD सेक्शन। पता नहीं क्या पूछेंगे एग्रीकल्चर में, पता नहीं क्या पूछ लेंगे हमें रूरल डेवलपमेंट में, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम ये एग्जाम को देते ही नहीं है। ओके, अभी तक ये फियर चल रहा है, तो फियर को दूर करने के लिए पर्टिकुलरली ये ARD सेक्शन का मैंने आपको यहाँ पर ब्रेकेज दिया है फ्रॉम द 2019 टू 2014। सो देयर आर 18 टॉपिक्स पर्टिकुलरली, ठीक है। 18 टॉपिक्स में से हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो नबार्ड का अभी तक फोकस है वो कहां पर रहा है। एंड अगेन जो हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, इट मींस यू नो कि आपको किस डायरेक्शन में स्टडी करनी है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि दैट यू नीड टू क्लियर द कट ऑफ of the examination. Okay, so first is your agriculture, introduction to the agriculture. 19 में 2 questions, 20 में so there is a आप बोल सकते हैं साइनोसोडल ग्राफ बन रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। एंड जो भी क्वेश्चंस भी आते हैं वो आपके काफी जनरली के नेचर आते हैं, आप उन्हें इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन देयर एग्रोनॉमी टॉपिक, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम योर एग्रोनॉमी सेक्शन which are easy in nature. Okay, easy in nature and should be attempted by the student. एग्रोनॉमी क्या आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपका ऑलरेडी रिलेटेड टर्म रहता है बिकॉज आप ESI भी पढ़ रहे हैं। आपने इकोनॉमिक्स टर्म्स को यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग में देखा ही है, मैगजीन्स रीडिंग में आपने पढ़ा ही होता है, तो आपके लिए एग्रो इकोनॉमिक कंपैरेटिवली इजी रहेगा। ओके, देन द फार्मिंग सिस्टम, वेरियस फार्मिंग सिस्टम, इस पे क्वेश्चंस आप देखोगे लास्ट 2 ईयर से 23 एंड 24 में नहीं आए। देन द क्रॉपिंग सिस्टम एंड द पैटर्न, मोनोकल्चर होता है, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न है, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग टाइप की जो चीजें है वो अब क्या है अभी डिक्लाइन पे है। यहाँ पर एग्रोमीटियोलॉजी मीन्स द वेदर का रोल जो एग्रीकल्चर में रहता है वो होता है एग्रोमीटियोलॉजी। एग्रोमीटियोलॉजी से आप देखोगे एक क्वेश्चन आया है, ओके, 2 क्वेश्चन आए 2023 में, तो हम बोल सकते हैं 1 से 2 का इसका एवरेज है पर ईयर। सीड एंड सोइंग, सीड जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन में जो सीड आता है, जो आपका इनपुट है सीड जो आपको क्रॉप देता है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका 1। देन 23 में आप देखोगे 3 क्वेश्चन आए थे, तो देयर इज अगेन ट्रेंड जो है वो आपका 1 से 2 क्वेश्चन के लिए इसमें सीड के लिए पर्टिकुलरली। Then we have soil and water conservation. So this is an important chapter in terms of the weightages. This is your weightages part, soil and water conservation. It is also considered an easy topic in the manner कि ज़्यादा scientific values नहीं आ रही है, water conservation की techniques पूछ रहे हैं, soil conservation की technique पूछ रहे हैं, सॉइल की लेयर्स पूछ रहे हैं, आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सॉइल की लेयर्स कितनी होती है, ओके, सॉइल प्रोफाइल। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो उसका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो आता है एग्जामिनेशन में। देन वी हैव वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन। इरिगेशन में आपके पास माइक्रो इरिगेशन आ जाएगा, ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन आ जाएगा, ड्रिप इरिगेशन आ जाएगा। वाटर रिसोर्स है, वाटरशेड डेवलपमेंट की बात होती है, डैम्स की बात होती है। अगेन दिस इज कंसिडर्ड एन इजी टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, नाउ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पार्ट है। नाउ दिस टॉपिक जो है अभी जो है करंटली ये आपकी थोड़ी टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट करता है कि इंजीनियरिंग का जो यूज है एग्रीकल्चर में वो कैसे हो रहा है, वेरियस पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं, तो टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं। तो आई विल से कि आपके लिए थोड़ा सा आपको इसमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 311 आप देखोगे कि 1 से 2 का इसका एवरेज रहता है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट इज योर प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर। प्लांटेशन आर योर टी, कॉफी, कैश्यू, रबर, ठीक है, दिस इज अ प्लांटेशन सेक्टर। हॉर्टिकल्चर में आपके बहुत बड़ा सेक्टर है अभी, फ्रूट से वेजिटेबल, फ्लावर से लेके आपके स्पाइसेस भी आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। देन वी हैव एनिमल हस्बेंड्री। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन का यहाँ पर एवरेज है।
एंड एनिमल हस्बेंड्री इज मेंटेन को करता है, किसको, रेशियो को भी मेंटेन करता है. आउट ऑफ 40 क्वेश्चन इफ 5 क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम जस्ट वन चैप्टर, तो आपको ये पर्टिकुलरली ध्यान देना ही चाहिए. ठीक है, इस टॉपिक पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम. देन यू हैव फिशरी सेक्टर, ब्लू रेवोल्यूशन, 1 2 3 0 क्वेश्चन. सो आप देखोगे कि 1 क्वेश्चन का एवरेज है अभी. फॉरेस्ट्री अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 3 2. ठीक है, फॉरेस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट का रिलेटेड है. क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल सोसाइटी में बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए आपके पास फॉरेस्ट्री का आपके पास रोल पता होना चाहिए. ठीक है, ऑल्सो फॉरेस्ट्री नॉट जस्ट फ्रॉम प्रीलिम्स बट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको फॉर्दर पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग. Then the extension, agriculture extension, farm, lab to farm, sorry lab to fork. जो लैब में हो रहा है, जो भी लैब में आप इनोवेशन लेके आ रहे हैं, उसको आप फोक मतलब आपके प्लेट तक कैसे पहुंचाएगा, वो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पार्ट होता है. ओके, जस्ट लाइक योर कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR पूसा रोड. ओके, तो ये क्या आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच आर हेल्पिंग. अगेन 2 1 2 2 क्वेश्चंस, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट में आपके पास क्वेश्चन दिखेंगे आपको कब, 2024 में, एंड इन योर 2321 2020. ओके, टोटल क्वेश्चन है 4. देन द ARD करंट अफेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मीन्स 40 में से अगर आपके पास 10 क्वेश्चन ARD करंट अफेयर्स के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अराउंड 25% आपका पेपर जो ARD का सेक्शन है वो आपका क्लियर हो सकता है. तो इसलिए बोलते हैं आपके पास स्मार्ट स्ट्रेटजी करिए. आपके पास 3 से 4 टॉपिक हैं एंड यू कैन easily clear the cutoff of your prelims examination by focusing on ARD current affairs. First topic हो जाएगा ARD current affairs. Second would be your animal husbandry. Third would be your plantation and horticulture. So around 20 questions तो आपने यहाँ पर ही solve कर लिए. Then you have water resource and irrigation, easy topic है. Then we have agronomy and your soil water conservation. तो 30 क्वेश्चन का जो एवरेज है आपके पास, वो सिर्फ आपको 5 टॉपिक पढ़ के आ सकता है. तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है, आपको स्मार्टली पढ़ाई करना है, आपको एफर्ट वहां डालने हैं जहां पर आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके. ओके, यही रोल था सिर्फ इस पर्टिकुलर की फोबिया जो ARD के अराउंड है, उसको हम इस स्मार्ट स्ट्रेटजी से हम दूर कर सकते हैं. ओके, now what we are bringing, what physics wala is bringing to you is a bouquet of examination from UPSC CAPF, EPFO, NABARD to the RBI grade B. If you are already preparing or enrolled in the UPSC courses, so these should be your plan B. Plan B क्यों होगा ये आपके लिए? Plan B because of the overlapping nature, overlap of syllabus. For example, if there is a fear of quant and reasoning, then NABARD is good for you. And if you are interested in your economics part, okay, if you are interested or if you are inclined toward the economics part, finance part, and your reasoning part and quant part is also very much aligned, और आप उसको क्लियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन को. ठीक है, तो RBI grade B is your preferred choice. Then we have UPSC CAPF. If you have zeal to serve the nation in the military, have a patriotic feeling for serving at the borders area, okay, then CAPF is for you. And you have a social, EPFO क्या करता है आपका, सोशल वेलफेयर मेजर्स लेके आता है. देयर इज अ चांसेस ऑफ योर लेबर लॉ, कि आपको लेबर लॉज पढ़ने पड़ेंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द लेबर वेलफेयर, so EPFO is your organization. Okay, so depending on your interest, depending on your positive points, depending on your strength, depending on your weakness, you can choose your plan B accordingly with Physics Wala. Physics Wala is providing you a bouquet of, that's why a bouquet of your examination. ये क्या आपके पास a bouquet of examination है, Physics Wala is providing you at a very minimal cost. Okay, जहां पर आपकी तैयारी हो सकती है with your minimum effort, because we believe in your
हम एक बिलीव करते हैं किसमें, मिनिमम एफर्ट में टू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम गेन्स। ओके, नाउ क्या क्या मिलेगा आपको इन चारों सेक्शंस में, इस पर्टिकुलरली आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपने एडमिशन लिया तो सो दिस 4 एग्जामिनेशंस का आपके पास एक मिलता है चांसेस कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडीज को अलाइन कर सकते हैं विद दिस 4 एग्जामिनेशन। देन द स्पेसिफिक एग्जाम रिकॉर्डेड लेक्चर। सो नाबार्ड के लिए आपको ARD सेक्शन के लिए आपको पास I will be there to teach you the nitty-gritties of the ARD. I will be there to ensure कि आपके पास जो FOMO है, if there is any kind of fear also, वो रिमूव हो सके। ओके, स्पेसिफिक लेक्चर रहेंगे मींस ARD सेक्शन के पास स्पेसिफिक लेक्चर रहेगा, ESI सेक्शन का स्पेसिफिक लेक्चर रहेगा, फ्रॉम द EPFO लेबर लॉस के लिए अलग स्पेसिफिक लेक्चर रहेगा। ओके, CAPF के लिए अलग स्पेसिफिक लेक्चर है, RBI ग्रेड वे में मैनेजमेंट का अलग स्पेसिफिक लेक्चर होगा। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड एंड स्मार्टली टू योर बेनिफिट। ओके, इंटीग्रेटेड सिलेबस अप्रोच, इसी की बात कर रहे हैं हम कि देयर इज एन ओवरलैप जो है उसको हम स्मार्टली देखेंगे, स्मार्टली मतलब स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, आपकी तैयारी में इजी रहेगा। फोकस रिवीजन क्लासेस, रिवीजन क्लास रहेगी फॉर ईच एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस टेस्ट सो दैट यू कैन नो कि आप कहां पर रिलाय कर रहे हैं एंड कहां पर आपको वर्क करने की ज्यादा। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए दे विल बी योर प्रैक्टिस टेस्ट। प्रीवियस ईयर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर एनालिसिस हमने अभी देखी थी ARD की, ठीक है। ARD सेक्शन में हमने देखा प्रीवियस एनालिसिस से कि वेयर आर द सेक्शन वेयर वी नीड टू फोकस फॉर योर एग्जामिनेशन। सो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से हम क्या करेंगे, एनालिसिस से वी विल फाइंड आउट कि वेयर we need to focus or where we need to put our efforts. Then the strategy session just like this, आपके strategy session होंगे पर्टिकुलर, हर एक सेक्शन का होगा। इफ सेक्शन के बाद भी आपको लगेगा कि हर एक चैप्टर का भी हो सकता है, so we will also do that. Then the current affairs, अगेन करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पर्टिकुलरली नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास ESI में भी करंट अफेयर्स आएगी, आपके पास ARD सेक्शन में भी ARD करंट अफेयर्स आती है, देन द GA सेक्शन इज आल्सो फुल ऑफ योर करंट अफेयर्स। ओके, सो दिस इज योर व्हाट वी आर ऑफरिंग टू यू एज अ पैकेज। देन व्हाई वी आर सेविंग, व्हाई वी आर emphasizing on the overlap nature of the examination just for your own benefit। हम चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपने दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करें, सो दैट a plan B is getting ready behind your back। consciously unconsciously आप plan A के साथ plan B पर भी काम कर रहे हैं। ओके, सो ऑलरेडी हमने क्या देखा कि 60 से 70% आपका ओवरलैप हो रहा है सिलेबस, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आप अपनी खुद की पेस पे पढ़ सकते हैं। ओके, टू द पॉइंट लेक्चर से मिलेंगे आपको, पेस वेरी कर सकते हैं कि आपकी पेस क्या है, आपके पास ऑलरेडी अगर सेक्शन ऑलरेडी कोई कवर्ड है आपके पास या फिर जानते हैं आप उस सेक्शन को, ठीक है, तो आप उसमें पेस इंक्रीज कर सकते हैं। देन अफोर्डेबल, अ नो कॉस्ट सिनेरियो यहाँ पर तो, क्योंकि आपको 4 एग्जाम का बंडल मिल रहा है इन जस्ट अ मिनिमल कॉस्ट। देन द स्मार्ट बैकअप स्ट्रेटजी मीन्स योर प्लान बी, कि आपके पास प्लान बी रेडी करवा रहे हैं आपके लिए विथ योर प्लान ए। प्लान ए वुड बी योर UPSC। ओके, तो प्लान बी आपको PW क्या दे रहा है, आपको प्लान बी भी प्रोवाइड कर रहे हैं सर। अ प्रेस्टिजियस जॉब, ये नहीं कोई भी जॉब मिल रहा है आपको, अ प्रेस्टिजियस जॉब, अ चांस टू वर्क इन अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द अंडर द नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। परफेक्ट फॉर योर वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये बहुत परफेक्ट है बिकॉज इट प्रोवाइड यू द फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी पेस पे पढ़ सकते हैं। एंड देयर इज एन वेरी स्मार्ट अप्रोच गिवन कि आप अपने एफर्ट्स को भी इतना यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम उसका आउटपुट ले सके। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट से ना, मैक्सिमम गवर्नेंस विथ योर मिनिमम गवर्नमेंट, सिमिलरली वी आर ऑल्सो एम्फसाइजिंग ऑन मैक्सिमम आउटपुट विथ जस्ट योर मिनिमम एफर्ट। ओके, सो 1 बैच 4 गवर्नमेंट एग्जाम, बी एग्जाम रेडी। आई होप सेशन काफी इंटरेक्टिंग रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा, डाउट्स क्लियर करे होंगे पर्टिकुलरली फ्रॉम द नाबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड आई होप टू सी यू इन द lecture series. Okay, thank you so much, all the best.